नमस्कार। DS साइंस एकेडमी की स्थापना के प्रथम दिन से ये प्रयासरत रहा था कि इस परिक्षेत्र के विद्यार्थियों को उस लेवल की फैकल्टीज़, उस लेवल की एजुकेशन मिले जो उसको महानगरों में आज से पहले उपलब्ध होती रही थी। कि यहाँ से विद्यार्थी कक्षा 12 के साथ ही बहुत अच्छी रैंक दे करके सेलेक्ट हो रहे हैं। न केवल सेलेक्ट हो रहे हैं बल्कि अपना बोर्ड परिणाम भी अच्छा दे रहे हैं। मैं इस बात को आपसे बताते हुए बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि DS साइंस एकेडमी में नेशनल लेवल की फैकल्टीज़ अध्यापन करा रही हैं और आज DS साइंस एकेडमी राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूटों में अपना एक मुकाम स्थापित करने में कामयाब हुआ है। मैं आपको इन सभी मेरी नेशनल लेवल की टॉप क्लास फैकल्टीज़ का आपसे परिचय करा करके बेहद गर्व की अनुभूति हो रही है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके बालक के सपने, आपके सपने, उसको हम साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और रहेंगे और उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा करके ही दम लेंगे। Hello everyone, myself Ashutosh Kumar. I have completed my BTech from IIT Kanpur. I have an experience of teaching since 15 years for the competitive exam like as NEET, JEE Main and Advanced. This is Dr. Walia. Regarding my academic qualification, I'm MSc in Botany. I have done MA in Sociology and I have done MAd also. In all the three postgraduate examination, I have been university topper, and after that I have done PhD in two subjects, that is PhD in botany and PhD in education. My recognition was being done at different level. I have been awarded National Award and President Award also was given to me. After my retirement, I had been associated with coaching industry. That first appointment, I had been there in Akash Institute, and the first appointment was there at Chandigarh as academic head. I had been there for a few years. Then I have been transferred to Jaipur and then to Bangalore. Because of my personal reasons, I had to leave Akash Institute, and then I had joined Helix Institute there at Chandigarh, which is one of the most, that is well-known institute of North India in medical coaching. Myself अतुल शर्मा, योर मैथमेटिक्स मेंटर। और मेरे पिछले 16 सालों के इस कोचिंग इंडस्ट्री के अनुभव में मैंने 4th, 17th, 19th, 23rd ये रैंक्स प्रोड्यूस करी हैं। इसके अलावा और भी रैंक्स हैं, पर ये वो रैंक्स हैं जो अंडर 25 हैं। इसके अलावा फिर जी साउथ दिल्ली के हेड ऑफिस में मैंने 135 से ज़्यादा फैकल्टीज़ को ट्रेंड किया है। Hello everyone, myself Harish Chaturvedi, HOD Chemistry, and I am MSc from Department of Chemistry, University of Rajasthan, Jaipur. Hello everybody, myself Manoj Sharma. I have completed my MSc in Chemistry from IIT Roorkee. DS साइंस एकेडमी के साथ एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी मैं पिछले 4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। Myself शिवशंकर सिंह, फिजिक्स टीचर। ऑलमोस्ट 23 ईयर्स से टीचिंग कर रहे हैं। मोस्टली आकाश में ही समय दिया है, ऑलमोस्ट 11 ईयर। Myself, Engineer Tejpal Yadav, BTech from Army Institute of Technology, AIT Pune. I am Maths faculty at the DS Science Academy, and I have 8 years of experience in the IIT JEE coaching field. Myself, Bhagwan Das Dhakar. I did post graduation in biotechnology from the IIT Bombay, and I have a 10 years teaching experience in NEET field. My name is Saurabh Saraswat, and I have completed my MSc from chemistry from MNIT Jaipur. I've been teaching the students of IIT JEE and medical from last 7 years, and during these years I've worked with many institutes like Akash and Motion IIT JEE. Hello everyone, I am PN Sir. I am Senior Physics Faculty at the DS Science Academy. Hello everyone, I am Siddharth Jain, Physics Faculty from Kota, Rajasthan. Hello everyone, my name is Shakti Kanchan. I am MSc NET qualified in Life Science, and I have 10 years of experience in the teaching field, in the coaching field of the NEET. मैं अवधेश शर्मा, CMD, DS Science Academy, गंगापुर सिटी। Hi, this is Pradeep Kumar Yadav. I have completed BTech from Jaipur. मैं अशोक कुमार शर्मा, प्रिंसिपल DS साइंस एकेडमी, विगत 9 वर्षों से कार्यरत। मैंने अपने कार्यकाल में हजारों IITian, सैकड़ों मेडिकल सिलेक्शन दिए हैं, दर्जनों बोर्ड मेरिट दे करके और इस शहर को गौरवान्वित किया है। इंस्टीट्यूट तब बेस्ट होता है, या यूं माने कि बेस्ट रिजल्ट दे पाता है तब जब वह दो तरह से मजबूत हो। एक तो फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। द स्टूडेंट्स जो यहाँ के काम कर रहे हैं, जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, द डेडिकेटेड टीम ऑफ फैकल्टी मेंबर्स हियर एंड ओवरऑल कंजीनियल एटमॉस्फेयर
which is required for overall growth of the child, I have seen here at DS Science Academy. तो उसी समय से मेरा एक रुझान था, मेरी एक सोच थी, यदि कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है तो निश्चित रूप से मैं उस अवसर का लाभ उठाऊंगा, और उस अवसर का लाभ मुझे मिला है। और मैं चाहता हूं कि बच्चों का जो कैलिबर है, जो बच्चों में ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उस ट्रेनिंग को मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट में दूं। चिल्ड्रन, यू नो, बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इट इज़ नॉट ईजी टू गेट गुड मार्क्स। यू कैन गेट मोर देन 99% मार्क्स आल्सो इन बायोलॉजी। So that's why I had been associated. This is my second tenure here in DS Science Institute. देखो बच्चों, IIT या मेडिकल कोई भी अगर हमें गोल अचीव करना है तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं आपके मेंटर्स। आपके मेंटर्स सबसे पहली प्रायोरिटी, अगर वो नेशनल लेवल के हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका 50% काम तो हो गया। परिस्थितियां कितनी भी विषम हो, आपको अपनी स्टडी को रोकना नहीं है। DS साइंस एकेडमी की बेस्ट टीम के साथ आपको अपनी पढ़ाई अनवरत जारी रखनी है। DS साइंस एकेडमी में हमारी टीम से केमिस्ट्री पढ़कर आपको लगेगा कि केमिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग और स्कोरेबल सब्जेक्ट है। एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी मेरा व्यक्तिगत अनुभव बहुत ही बेहतरीन रहा है। DS साइंस एकेडमी को आज देश में किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। DS साइंस एकेडमी ने पिछले 15 सालों में बेहतरीन रिजल्ट दिए, चाहे वो नीट हो, चाहे वो JEE मेंस हो, चाहे JEE एडवांस हो या STSC हो। इन सभी परीक्षाओं में DS साइंस एकेडमी ने अपने उत्कृष्ट रिजल्ट का परचम पूरे देश के अंदर फहराया है, और शायद ही देश का कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज हो या कोई ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज हो जिसमें आज DS साइंस एकेडमी का छात्र नहीं पढ़ रहा हो। और इस छोटी सी जगह के, एक छोटे से संस्थान के लिए ये इस तरह के बेहतरीन परिणाम देना अत्यंत ही गर्व का विषय है। और DS साइंस एकेडमी का एकमात्र उद्देश्य इस ग्रामीण परिवेश के प्रतिभा को तराश कर राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थानों के अंदर दाखिला दिलाना है। फिजिक्स नेचुरली एक सिंपल सब्जेक्ट होता है, जैसे पहले आप जो है चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज क्लियर होने के बाद आप चाहें तो कोरिलेट करके, जैसे आपको फ्लूइड कंडक्शन है, हीट कंडक्शन है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन है, ऑलमोस्ट सभी फार्मूले सेम मैनर में अप्लाई किए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट को टीच करने में जितना एंटरटेनमेंट से मिलता है उतना शायद बच्चों को भी उतनी एंजॉय करते हैं। इसलिए फिजिक्स में स्कोर करना, चाहे वो मेडिकल एंट्रेंस हो या इंजीनियरिंग हो, दोनों के लिए मैंने कहा इक्वली जो ईजी होता है। और आजकल जैसे NTA पेपर सेट कर रहा है तो उसमें तो और आसान हो गया है। इसलिए हम समझते हैं कि DS जो एनवायरनमेंट यहाँ प्रोवाइड कर रहा है वो नेचुरली बच्चों के लिए फ्यूचर ब्राइट बनाने वाला है, और आप चाहें तो उसका बहुत अच्छी तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इस लोकेलिटी में इस लेवल का इंस्टीट्यूट होना इस सराउंडिंग या यहाँ के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। मैथ्स से खासतौर से जो JEE एडवांस लेवल पर जो बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम से डर लगता है, मैं एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगा कि DS साइंस एकेडमी की बेस्ट फैकल्टी टीम द्वारा जो आपको प्रॉब्लम को अप्रोच करने का जो तरीका आपको बहुत शानदार तरीके से बताया जाता है, जिससे कि यहाँ के बच्चे सामान्य तौर पर JEE एडवांस में भी बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, JEE मेन में भी बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। और तमाम इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने के बाद, तमाम जगहों पर पढ़ाने के बाद एक चीज़ मैंने जो महसूस की है, एक चीज़ जो मैं अंदर से फील करता हूँ, वो ये है कि सोने से गहना सब बनाते हैं, लेकिन मिट्टी से हीरा बनाने की कला अगर कोई जानता है तो वो DS साइंस एकेडमी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्रामीण अंचल के साधारण से बच्चे को एक बिल्कुल उस पर फोकस करके, उस पर इंडिविजुअल ध्यान देके उसको IIT JEE मेन और एडवांस एग्जाम क्रैक करवा के उसको बेहतरीन संस्थान और IIT जैसे संस्थानों में दाखिला दिलाना, वास्तव में ये DS साइंस एकेडमी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि साधारण से बच्चों से लेकर टॉपर बच्चों तक हर बच्चे पर इंडिविजुअल जो फोकस किया जाता है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि पिछले साल जो कोरोना की वैश्विक महामारी आई, उसमें उस स्थिति में भी और आज भी जो महामारी जारी है, उस विकट स्थिति में भी जो DS साइंस एकेडमी ने बेस्ट फैकल्टी टीम के द्वारा जो बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो बच्चों को ऑनलाइन स्टडी का प्रोग्राम जारी रखा, वो वास्तव में बहुत बढ़िया रहा। आज DS साइंस एकेडमी ने दुनिया के तमाम इंस्टीट्यूट्स में से एक बात साबित कर दी है कि स्कूल बंद होने का मतलब पढ़ाई बंद होना नहीं है। आज भी यहाँ के स्टूडेंट अपने बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यहाँ की बेस्ट फैकल्टीज के माध्यम से आज भी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं।
700 से अधिक अगर मार्क्स लेने हैं नीट में और JEE में टॉप रैंक्स अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो है DS साइंस एकेडमी। यहाँ पर एक बेहतरीन चीज़ ये भी है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक बेहतरीन इंटरेक्टिव सिस्टम है और यहाँ पर जो डाउट काउंटर है वहाँ एक बच्चे पर और बड़ी यानी सीनियर और जूनियर फैकल्टी द्वारा बड़े ध्यानपूर्वक उनके डाउट्स जो हैं सॉल्व किए जाते हैं। इन कुछ सालों में मैंने ये बात फील करी कि जितना सेटिस्फेक्शन मुझे DS साइंस एकेडमी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने में फील हुआ वैसा मुझे किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को पढ़ाने में फील नहीं हुआ। इसीलिए मैं बस यही बात कहना चाहूंगा कि DS साइंस एकेडमी बेस्ट था, बेस्ट है और बेस्ट ही रहेगा। फिजिक्स पे बहुत अच्छी कमांड करने के लिए फिजिक्स को 3 तरह से ग्रिप में करना चाहिए। पहला, कॉन्सेप्चुअली। कॉन्सेप्चुअली मीन्स कि आप कॉन्सेप्ट्स को कितना डीपली पढ़ते हैं और कितना डीपली एनालाइज करते हैं। दूसरा, न्यूमेरिकली, कि आप MCQ न्यूमेरिकल्स को कितनी प्रैक्टिस देते हैं। और तीसरा है एनालिटिकली, कि आप कितना लॉजिकली और एनालिटिकली प्रॉब्लम को देखते हैं और समझते हैं और सोचते हैं। एक ऐसी संस्था जिसने बच्चों और गार्जियंस का इस विकट समय में भी विश्वास बनाए रखा है, ये वाकई एक काबिले तारीफ बात है। पिछले साल इस वैश्विक महामारी को देखते हुए जो पेरेंट्स, जो एकेडमी, जो स्टूडेंट्स और भी अन्य लोग जो ये कहते थे कि ऑफलाइन स्टडी ऑफलाइन ही होती है, कभी ऑनलाइन स्टडी उसका विकल्प नहीं हो सकता, इस बात को मिथक साबित करते हुए हमने सिद्ध किया है। DS साइंस एकेडमी की फैकल्टी टीम, हमारे पेरेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर ऑनलाइन स्टडी में पढ़ाई करते हुए जो करिश्माई परिणाम दिए हैं वो वाकई काबिले तारीफ हैं। चाहे STSC का परिणाम हो, STSC में आप देखिएगा राजस्थान बोर्ड की टॉप 20 की मेरिट लिस्ट में 8 स्टूडेंट्स DS साइंस एकेडमी के हैं, जिनमें से टॉप रैंक 2nd DS साइंस एकेडमी द्वारा दी गई है। अभी NTSC के जो परिणाम आने वाले हैं वो STS से भी कई गुना ज़्यादा चौंकाने वाले होंगे। और ओलंपियाड्स में आप देखिएगा जो इंटरनेशनल रैंक होती है, साइंस ओलंपियाड और मैथ्स ओलंपियाड, उन दोनों में टॉप 1000 में हमारे 5 स्टूडेंट्स ने अपना नाम दर्ज कराया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले साल की भांति इस बार भी DS साइंस एकेडमी की पूरी टीम, हमारे स्टूडेंट्स दोबारा से एक बार उसी परिणाम को दोहराने के लिए कटिबद्ध हैं। कोरोना की वजह से स्कूल भले ही बंद हो गए हैं, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। DS साइंस एकेडमी हमेशा से ही परिणामों के लिए जाना जाता रहा है और जाना जाता रहेगा। ऐसी शक्तिशाली टीम का नेतृत्व करते हुए मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज की स्थिति फिर से एजुकेशन सिस्टम के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। पिछले लास्ट ईयर हम अगर अप्रैल 2020 में जाएं तो इस समय बहुत भयंकर कर्फ्यू था, लॉकडाउन था और स्कूल सारे बंद थे और हमें उस समय यह तय करना था कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को हम कितना सीरियसली लें। बहुत स्टूडेंट्स, अभिभावकों ने, बहुत इंस्टीट्यूट्स ने इसको उतना सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने ऑफलाइन स्कूल खुलने तक का इंतज़ार किया और ये इंतज़ार इतना लंबा था कि कम से कम 7-8 महीने निकल गए। हमने इन चीज़ों को समझा, हमारी टीम ने समझा, हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे अभिभावकों ने इस चीज़ को अपनाया कि नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन से भी जो है हम चीज़ों को सीख सकते हैं, टॉपिक्स तैयार किए जा सकते हैं। बीच में फिर एग्ज़ाम्स हुए, JEE मेन के एग्ज़ाम हुए, NTSC के एग्ज़ाम हुए। वहाँ सब जगहों पर जब हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, तब हमें लगा कि नहीं, ये चीज़ बिल्कुल मुमकिन है और हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवा सकते हैं। और हमने एक चीज़ और नोटिस की कि जो बच्चे उस ऑफलाइन स्कूल के खुलने का इंतज़ार करते रहे वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए। जब हमने ऑफलाइन क्लासेस में वापस टॉपिक्स को पढ़ाना शुरू किया तो हमने तेज़ी से रिवाइज कराया चीज़ों को, तो रिवीजन में भी वो बच्चे थोड़े पीछे रह गए जिन्होंने उस दौरान ऑनलाइन क्लासेस को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सिस्टम को उतना नहीं अपनाया था। ऑनलाइन एजुकेशन को अपना कर जिन्होंने चैप्टर्स तैयार किए और जिन्होंने नहीं किए, ये नुकसान या जो डिफरेंस है ये केवल यहीं तक सीमित नहीं रह जाएगा। हो सकता है उनके पूरे करियर बिल्डिंग में भी इसका रोल रहे। वापस फिर से स्कूल बंद हैं, बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई ठप हो चुकी है, फिर से बच्चे अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि स्कूल बंद होने का मतलब पढ़ाई बंद होना तो नहीं है। हम सभी को अभी इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा स्टडी करने के लिए उन्हें तैयार करना चाहिए। ये बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल संभव है। पिछली साल भी हमने
उस कोरोना काल में जब कई इंस्टीट्यूट्स अपनी फैकल्टीज़ को कम कर रहे थे या फिर उनकी सैलरी कम कर रहे थे, हमने अपनी टीम बढ़ाई थी और हमने देखा कि उसका हमें फ़ायदा हुआ, हमारे रिजल्ट्स में, हमारे सिस्टम में, हमारे बच्चों का फ़ायदा हुआ। इस बार भी हमने अपनी टीम बढ़ाई है, कुछ नए और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हमने जोड़े हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि डियर साइंस एकेडमी इस समय पूरी तरह तैयार है ऑनलाइन एजुकेशन को भी देने के लिए, और जब आगे चल कर के जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तो पूरी टीम तैयार रहेगी आपकी क्लासेस को कंटिन्यू करने के लिए। इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं हो, पैनिक नहीं हो। और जो डियर साइंस एकेडमी का स्लोगन आज है कि स्कूल बंद होने का मतलब पढ़ाई बंद होना नहीं है, इसे पूर्णतः आप अपने मन में बैठा लें, तभी हम ऐसी स्थितियों का मुकाबला कर पाएंगे। शिक्षा दुनिया का शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकने में उपयोग कर सकते हैं। आप डीएस में हैं, समझो सुरक्षित हाथों में हैं।